Good morning, children. I hope that you all are well and fine. Be at the home and be safe. Okay. Okay. Now, last time in my video, we have completed up to the E. This was the question up to which we had completed. Now, today we are going to start our next number, that was F. Now, give two examples of each of the following. ओके तो आप लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है कि यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू बी जस्ट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल that was compressible substance. So all the substances those who can be compressed. Okay, now when I explained this chapter, ये chapter जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस समय I had told you that what are the things and what are the objects those who can be compressed. If you remembered that basically we have discussed about three types of objects. That was the solid, liquid and the gases. Okay, means all the matters are generally having three types of states: solid, liquid and the gas. Okay, now out of these three the two can be compressed, that was liquid and the gas. The solid state of any matter is not compressing of a solid state of any matter is not possible. Okay, the possibility of compressing will be only for the liquid and gases. Okay, so now see what examples I had given here. Compressible substances, liquid and gas, liquid and gas. Okay, so all the liquids will come here and all the gas. Water soluble gases, water soluble gases, CO2 and O2. How? CO2 is soluble in the water, that's why aquatic plants are surviving. There are a lot of very great variety of plants are existing in the ocean and under the pond, in the lakes, in the oceans, in the pond. Okay, they all are having their attachments with the lower lying soil of pond and the lake. Means their requirement of the minerals will be fulfilled from the soil, but the requirement of gas, that was CO2, that will be fulfilled from the water, because the carbon dioxide which is existing in the atmosphere, that carbon dioxide would be able to dissolve itself in a very small amount in the water, due to which the plants would be able to do their function of photosynthesis, especially during daytime. Okay, at night they will also do the same thing what all the animals are generally always doing in the water. Okay, now as far as oxygen is concerned, all the animals, those who are existing in the water, all the aquatic animals are capable to do respiration just because of oxygen. But these all the animals are not always existing in the air and on the land. A lot of different very great variety of the animals are existing in the oceans also. Okay, अगर आप ये सोचो हमारी अर्थ का 70% पार्ट ओशन के थ्रू कवर्ड है. ओके, तो 70% पार्ट ओशन के थ्रू कवर्ड है और हमारे ओशंस में मिलने वाले एनिमल्स बहुत सारे हैं. ये सारे के सारे एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में आप किस गैस का यूज़ करते हो? डेट वॉज ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स हमारे ओशन में, लेक में, पॉन्ड्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. वाटर के अंदर होने के बावजूद ये लोग लाइव हैं. दे ऑल आर लिविंग जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न डेट ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन द वाटर. ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली दो तरह की गैसेस हैं जिसका यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं. दैट वाज मतलब देखो कई तरह की गैसेस हैं जिसका यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिकली वो गैस जिसके बिना इनका सर्वाइव करना मुश्किल है, डेट वाज द CO2 एंड ऑक्सीजन. देखो हमारे लिए एनिमल्स का इंपॉर्टेंस भी उतना ही है जितना कि प्लांट का है. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्लांट के बिना एनिमल्स का एग्जिस्टेंस होना पॉसिबल नहीं है. तो प्लांट्स हमारे अर्थ पे सर्वाइव करते हैं जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द CO2. अगर CO2 नहीं रहेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे, और अगर प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसीलिए इन दोनों गैसों का होना, हमारे एटमॉस्फेयर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है बच्चों,
अब देखो वाटर सॉल्युबल गैसेस का नाम लिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर ये रीज़न डेवलप कर सकते हो अपने माइंड में कि वाटर के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों रहते हैं। तो एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2 ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्युबल नेचर ऑफ द गैसेस लाइक CO2 एंड O2। क्लियर? थर्ड नंबर देखिए, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? ऑल द मटेरियल्स और ऑल द सब्सटेंसेस दोज हु कैन पास अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू इट, they will be called as a translucent substances। ओके, चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक सब्सटेंसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें से ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी वाले 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉस्टेड ग्लास। आप लोगों ने अगर कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो ट्रेन में जो AC बोगी होती है, AC बोगी का जो वॉशरूम होता है, उस वॉशरूम का जो बाहर वाला ग्लास होता है जहाँ से केवल लाइट, बाहर से केवल लाइट अंदर आती है, लेकिन अंदर का कुछ भी बाहर हमें नज़र नहीं आता। ओके, डैट वाज द फ्रॉस्टेड ग्लास। मतलब एक ऐसा ग्लास जिससे कि लाइट तो अंदर जाएगी लेकिन 100% नहीं जाएगी। अगर 100% लाइट अंदर जाती तो अंदर का सब कुछ हमें दिखता, जो कि हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास लगाते हैं। ठीक है ना? तो फ्रॉस्टेड ग्लास इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। सेकेंड नंबर है डैट वाज ऑयल्ड पेपर, OILED, ऑयल्ड पेपर। ओके, पेपर के ऊपर अगर आप हल्का सा ऑयल लगा दो तो उसके अंदर से लाइट को पास होने का ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसके अंदर से पास हो जाती है, तो उसको आप ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस में काउंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ टर्न ओवर द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन G, given below are the names of the some objects and the materials: water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitchers, group them as। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन सभी नामों को आपको देखना है और देखने के बाद इनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट नंबर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना है। ग्रुप देम एज, कैसे कि फर्स्ट नंबर राउंड शेप्ड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हैं, एक है आपका राउंड शेप और दूसरा है यहाँ पे अदर शेप्ड। ओके, तो जितने भी मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके क्वेश्चन में, इन सभी में जितने नामों के शेप राउंड हैं उनको आप अलग रखो और जिनके राउंड नहीं हैं उनको आप अलग रखो। तो यहाँ पर हमने बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड एप्पल, इन सभी को मैंने राउंड शेप में रखा है। और अदर शेप में वाटर है। ठीक है, क्योंकि वाटर का शेप डिसाइडेड नहीं होता, वाटर का जनरली तो कोई शेप नहीं होता, उसको आप जिस कंटेनर में रखते हो उस कंटेनर का ही उसका अपना शेप होता है, और वो भी आपको नज़र कब आता है? जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर हो गया। शुगर का बेसिकली शेप तो क्रिस्टल होता है, लेकिन दैट वाज द टाइप ऑफ सॉलिड, दैट वाज नॉट द शेप। ओके, earthen pitcher, these were the some of the examples whose shape is not round। मतलब इनका शेप कैसा भी होगा लेकिन राउंड नहीं होगा, वाटर का, शुगर का, earthen pitcher का। नेक्स्ट नंबर देखिए, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। मतलब इनमें से कौन कौन से हैं जिसको आप खा सकते हो और कौन है जिसको आप नहीं खा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईटेबल्स में कौन कौन आते हैं? वाटर, बिल्कुल सही बात है। आप कुछ भी खाते हो उसके साथ में आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ऑरेंज चाहिए, शुगर चाहिए, एप्पल चाहिए। ठीक है, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। तो दीज वेर द 4 एग्जाम्पल्स दोज हु आर यूज्ड स्पेशली फॉर ईटेबल पर्पस, फॉर द ईटिंग पर्पस। नेक्स्ट नंबर नॉन ईटेबल्स में कौन कौन है? बास्केटबॉल, ग्लोब एंड earthen pitcher। ठीक है, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड earthen pitcher। नेक्स्ट नंबर H, सी हियर, पिक 5 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स गिवन बिलो विच आर ओपेक एंड वुड सिंक इन द वाटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को
कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स को पिकअप करना है। ओके, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है। वन ऑफ द कंडीशन इज बीइंग गिवन हेयर दैट यू हैव टू पिकअप द सब्सटेंसेस दोज हु आर ओपेक, ओके, विच आर ओपेक एंड वुड सिंक इन द वाटर। मतलब जो ओपेक भी होने चाहिए और वाटर में सिंक भी हो जाए, ऐसे भी होने चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ राउंड किए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर देखो ये एक राउंड किया है, दैट वाज इरेजर। इफ़ यू ऑल कैन सी हेयर, इरेजर, दैट वाज द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर मैंने राउंड किया है यहाँ पर की, KEY, की। ओके, थर्ड नंबर मैंने राउंड किया है यहाँ पर COAL, कोल। जो मुझे देखने में लग रहा है शायद ये है, दिस इज़ द कोल। ओके, और यहाँ पर देखो मैंने स्टोन को भी किया है, STONE, स्टोन। ओके, और देखो यहाँ पर COIN, कॉइन, दिस। ओके, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। So overall 5 things we have identified here, those who are opaque and they will get sink in the water. Next number, Raghav visit a restaurant and sees a number of things in the restaurant. अब देखो राघव एक बच्चे का नाम है, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो कई तरह की चीज़ों को देखता है। ठीक है, ओके, तो वो क्या क्या देख रहा है, लेट्स हैव अ सी। ही मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स एंड क्लासीफाई देम बाय फाइंडिंग मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। तो वो कई चीज़ों को देखता है और वो बोलता है कि भाई मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट में मैं उन सभी को उनके मतलब उनको बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का आपने यूज़ किया है, उस मटेरियल के बेसिस पर मैं उन सभी की लिस्ट बनाऊंगा। ओके, नाउ सी हियर इज़ द लिस्ट मेड बाय द राघव। अब देखो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट राघव ने बनाई है। ओके, स्टेट द मटेरियल्स ईच थिंग्स कुड बी मेड अप ऑफ। अब देखो यहाँ पर बाउल, ओके, चपाती, टेबल, फॉर्क एंड एप्रॉन, ये लिस्ट राघव ने बनाई है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि मटेरियल्स इट कुड बी मेड ऑफ, मतलब वो मटेरियल्स जिससे कि ये बन सकता है। मतलब बाउल किस किस से बन सकता है, ग्लास। आप ग्लास का यूज़ कर सकते हो टू मेक अ बाउल। यू कैन यूज़ स्टील टू मेक अ बाउल, यू कैन यूज़ प्लास्टिक टू मेक अ बाउल। ओके, नाउ चपाती को बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे। बेसिकली हर घरों में, मैक्सिमम घरों में हम वीट का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, दैट वाज द वीट फ्लोर। ओके, जो आटा होता है हमारे घरों में, दैट विल बी यूज्ड स्पेशली टू मेक द चपातीज। ओके, टेबल को बनाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, या तो प्लास्टिक के बनेंगे या तो वुड के बनेंगे। फॉर्क, इसके लिए फेदर्स एंड द प्लास्टिक। नेक्स्ट नंबर, एप्रॉन के लिए आप किसका यूज़ करोगे, कॉटन का। बेसिकली एप्रॉन के लिए आप कॉटन का ही यूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एप्रॉन का यूज़ आप कहाँ पे करते हो, एप्रॉन का यूज़ आप वहाँ पे करते हो जहाँ पर कुछ कुकिंग का काम हो रहा हो या किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शंस, मतलब लैब्स वगैरह में जो बच्चे होते हैं स्कूलों में, जब बच्चों को लैब के एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, है ना, तो एज ए स्टैंडर्ड उनको एप्रॉन दिया जाता है पहनने के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री लैब में, कि किसी भी तरह का केमिकल अगर उनके ऊपर गिरता है तो वो केमिकल डायरेक्टली उनके बॉडी के टच में ना आए, सबसे पहले वो एप्रॉन के टच में आएगा और जो भी होना होगा वो एप्रॉन का होगा। बच्चों की लाइफ और उनके स्किन के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आमतौर पे जैसे किचन्स में आपने देखा होगा, किचन वगैरह में जो कुक होते हैं जब वो खाना बनाते हैं स्टैंडर्ड होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पर वो लोग एप्रॉन पहनते हैं, जिससे कि कोई गर्म तवा या कोई गर्म चीज़ उनके बॉडी के साथ टच हो तो सबसे पहले वो एप्रॉन के कांटेक्ट में आएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे बेस्ट फाइबर हमारे पास अवेलेबल है, डैट वाज द कॉटन। ओके, कॉटन का हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। गर्मी वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए
कभी भी अगर किसी फाइबर को हम सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं तो डैट विल बी द कॉटन ऑलवेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों का ये वर्कशीट आज फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 5, डैट वाज योर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ओके, अच्छा बच्चों आप लोग भूलना मत, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको कट करके आप चैप्टर नंबर 5 लिख लीजिए। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल go through the revision video of chapter number 6. First of all we will go through the chapter number 6 in your टेक्स्ट बुक का मैं आप लोग को एक रिवीजन वीडियो भेजूंगा, उसके बाद फिर हम हमारा वर्कशीट शुरू करेंगे। एंड आई थिंक दिस वर्कशीट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, वी विल सॉल्व इट वेरी फास्ट। ओके बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बी सेफ, बी एट द होम एंड बी हैप्पी।